student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. I welcome you all to our Raffle Digital YouTube channel. Today we will learn about a topic that is franchising. Now, if you are having a small and medium scale entrepreneur and you need to expand your business in India, then by covering, if you want to expand your business in various city, in various district and in various state and even overall country, and even you need to expand your business in globally, then with the help of the franchise model, you can expand the business. So today I will explain how this franchising model work, and even we will learn about our business कैसे बढ़ सकता है, how you can expand your business and grow through a franchising model. Franchising means with a lesser amount of capital or with lesser seed of capital. Again I'm repeating, franchising means with lesser amount of capital or with lesser seed of capital or without the use of external fund. Without the use of external fund, you can expand your business in your state, in your city, in your country, and globally you can expand the business. So what I have said that franchises means with a less amount of capital, small amount मतलब less amount capital, capital की जो requirement है वो less, and with a less seed of capital मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका लेस अमाउंट होगा एंड विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल फंड, दैट इज यू आर नॉट रेजिंग द फंड्स फ्रॉम एक्सटर्नली एंड यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस विद various state and various country and even globally with the help of franchise model. In franchise model, there are two parties being involved. In franchises, there are two parties being involved, franchisor and franchisee. Franchisor is that person who sell his product and brand. Franchisor is a person who sell his product or brand. वो अपना प्रोडक्ट और अपना ब्रांड सेल कर रहा है. किसको वो सेल करेगा? फ्रेंचाइजी इज अ पर्सन हु प्रमोट फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ही यूज टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. फ्रेंचाइजी कौन होगा? जो ये फ्रेंचाइजी ने फ्रेंचाइजी को सेल किया होगा उसका प्रोडक्ट, उसको ब्रांड, उसी को वो क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है. ठीक है, ही इज अ पर्सन हु इज प्रमोटिंग द फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट एंड सर्विस. So franchisee is a person who used to promote the franchisor product and service in overall country. जब भी फ्रेंचाइजर ये अपनी ब्रांड को, अपना कंपनी के नाम को, अपने लोगों को और अपने प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी करता है विद द सेम क्वालिटी, विद द सेम ब्रांड, विद द सेम कंपनी नाम, उसको बोलेंगे फ्रेंचाइजी. तो फ्रेंचाइजी इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, ऐसा टाइप का ओनरशिप विच इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट whereby a company grant a buyer the right to engage in selling or distributing his product or service under prescribed business format in exchange for royalty or the share of property. For example, that is पार्टी ए एंड पार्टी बी. ठीक है, पार्टी ए जो है वो फ्रेंचाइजर है, ठीक है, मेन ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो ये फ्रेंचाइजर हुआ और ये फ्रेंचाइजी हुई. ठीक है, ये फ्रेंचाइजी हुए. ये बंदा अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड, अपनी कंपनी का नाम वो उसको सेल कर रहेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. वो अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो उसको सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, तो ये बंदा क्या कर रहे हैं? यही फ्रेंचाइज का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो उसको प्रमोट कर रहा है और एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी कंट्री. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर कंपनी गिव अ ग्रांट, लीगल राइट देती है, जहाँ पे ही कैन एंगेज इन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट एंड सर्विस अंडर प्रिस्क्राइब बिजनेस फॉर्मेट. एक बिजनेस फॉर्मेट रहता है इन एक्सचेंज फॉर. ये क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रॉयल्टीज and just because of sharing of profit. That is the main motive behind franchise, and the most main motive is that you can expand your business overall. आइडर ग्लोबली भी आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो. हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में आप अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर सकते हो. जब भी आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, दैट कैन बी फ्रेंचाइजी, कैन बी अ वन टाइप ऑफ योर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप. यहाँ पे मेन फायदा यही है कि सेम टेस्ट के साथ, सेम क्वालिटी के साथ हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो. और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, क्लियर होता है, गोल क्लियर होता है. दैट इज मेन पर्पस ऑफ द फ्रेंचाइजी.
Now let us move towards our another general meaning. Franchisee can be simply be defined as a form of contractual arrangement. ठीक है, is a form of contractual arrangement in which retailer enter into an agreement with a producer to sell the producer goods or services for a specific fee और कमीशन फॉर स्पेसिफिक फी और कमीशन. ठीक है, यहाँ पे रिटेलर उस एग्रीमेंट में एंटर होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बेच रहा है, जहाँ पे उसको सर्टेन फी का तो कमीशन मिल सकता है. जैसे कि सम टर्म्स रिगार्डिंग फ्रेंचाइजीज जो आपको क्लियर होना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइज. ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं. ठीक है, नाउ फ्रेंचाइजर जो होता है, ठीक है, नाउ फ्रेंचाइजर जो होता है द लाइसेंसिंग कंपनी इन द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट. आप फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करते हो तो वो मेन कंपनी है जो लाइसेंसिंग कंपनी है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंसिंग कंपनी इन द फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट. फ्रेंचाइजर मतलब जो मेन कंपनी है वो. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज ए फ्रेंचाइजी जो इंडिपेंडेंट ओनर है ऑफ फ्रेंचाइजी हु आउटलेट और एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद अ फ्रेंचाइजर. ये फ्रेंचाइजर के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो उसके प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं. एंड फ्रेंचाइजी द राइट टू यूज अ स्पेसिफिक बिजनेस नेम. अपने फ्रेंचाइजी के पास अपने खुद के बिजनेस नेम, दूसरे के बिजनेस फ्रेंचाइजी के बिजनेस नेम और यूज कर सकते हैं, सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विस इन स्पेसिफिक सिटी, रीजन और कंट्री. दैट इज अ फ्रेंचाइजी. तो यहाँ पे एग्रीमेंट के साथ आप कर रहे हो तो फ्रेंचाइजी. एंड फ्रेंचाइज मतलब जहाँ पे आपके पास राइट हो सकती है कि बिजनेस के नाम को आप यूज कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर सकते हो. ठीक है, यू हैव राइट टू यूज अ स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको राइट मिल जाते हैं. यू कैन यूज स्पेसिफिक नेम ऑफ द बिजनेस एंड सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विस इन स्पेसिफिक सिटी, रीजन एंड कंट्री. दैट इज मीन बाय फ्रेंचाइजेस. तो फ्रेंचाइजेस मतलब क्या होता है वो समझ में है कि बेसिकली franchisee is a patent or a trademark license entitling the holder to make a particular product or a service under a brand name or a trademark according to predetermined terms and conditions. That is a franchisee. As a distributor, you are selling the goods, you are delivering the service to outlet owned by retailer or the dealer. Now let us understand its advantages and disadvantages. The first advantages is that franchisees make the tasks. The first advantage is easy to start. Franchising make the task of getting start easier because the franchises get the business from it already market tested and found to work. Now यहाँ पे क्या easy to start मतलब आपको फ्रेंचाइजी के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑलरेडी वो मार्केट में सेटअप है, ऑलरेडी बिजनेस फॉर्मेट जो सेटअप है उसी को आपको फाउंडेड है बिजनेस मार्केट में, उसी को आप यूज कर रहे हो तो आपको इजियर टू स्टार्ट. ठीक है, हैंस बाइंग अ फ्रेंचाइजी इज सो फार सेफर देन ट्राइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने में और फ्रेंचाइजी बाय करने में आपको बहुत बाइंग अ फ्रेंचाइजी इज वेरी इजी रेदर देन टू स्टार्ट अ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने से मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, उससे अलावा आप फ्रेंचाइजी थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, बाय करोगे, दैट विल बी मोर इजियर. नेक्स्ट वन, इट रिड्यूस द चांस फॉर फेलियर बिकॉज सिग्निफिकेंट अब हर एक चीज खाली फ्रेंचाइजर का कर रहे हो तो यू आर हैविंग अ मेंशन दैट इफ यू फीवर देन 10% ऑफ ऑल द फ्रेंचाइजी फेल. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हर एक चीज सेटअप है, आपको खाली उसको बेचना है तो यहाँ पे फेलियर नहीं होगा, चांसेस ऑफ फेलियर विल बी लेस. परचेजिंग पावर इंक्रीज. फ्रेंचाइजीज से आप इंक्रीज कर सकते हो फ्रेंचाइजी की परचेजिंग पावर बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ लार्ज. ठीक है, आपकी जो बिजनेस है वो ऑलरेडी लार्ज है. ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज सप्लाई इक्विपमेंट्स, इन्वेंटरी, सर्विस, इंश्योरेंस एंड सो ऑन. हर एक चीज आप दे रहे हो. ठीक है, it also can mean getting better service from supplier because of the importance of organization. फ्रेंचाइजर से थ्रू आप हर एक चीज फ्रेंचाइजर की जैसे आप हर एक चीज बेच रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा. जस्ट बिकॉज आप खुद बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी को मार्केट में लाने में टाइम लगेगा, पर ये ऑलरेडी सेटअप है तो आपको खाली सेल करना, तो आपका परचेसिंग पावर जो है खुद का प्रोडक्ट का परचेसिंग पावर वो बढ़ जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ रिकॉग्नाइज, इजिली आप
रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइजीज ब्रिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। मेनी न्यू बिजनेस एक्सप्लेन लीन मंथ्स और ईयर आफ्टर स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद सब रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी बिजनेस को। तो लॉन्गर द पीरियड द बिजनेस मस्ट एक्सपीरियंस इट्स ग्रेटर द चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड थी उसी का आप यूज कर रहे हो तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फ्रेंचाइजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। जो फ्रेंचाइजर है वो कंटिन्यूस अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो प्रोडक्ट इम्प्रूव करने के लिए, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दैट इज एडवांटेजेस। एंड लास्ट, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक विल बी इजियर और इट कैन बी इम्प्रूव बिकॉज आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो है टू ऑब्टेन अ लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक कैन बी इम्प्रूव जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजर। सो दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ अ franchising. Now what will be disadvantages? The first disadvantages is no scope for enjoying their own creativity. जब भी फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अनलाइक अदर एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, द फ्रेंचाइजीज जो आपने ली है, ठीक है, फाइंड नो रूम और स्कोप फॉर एंजॉइंग द क्रिएटिविटी अपने आप से नहीं कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं है। द वर्क नीड टू बी वर्क एज पर द गिवन फॉर्मेट। जो फॉर्मेट में बोला गया उसी में काम करना है, तो कुछ भी आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इज अबाउट फ्रेंचाइजी व्हेन नो क्रिएटिविटी इज मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल वेयर यू कांट डू एनी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेजेस इज दैट नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं ऑल्सो इम्पोज अपॉन द फ्रेंचाइजी। रेस्ट्रिक्शन में रिलेटेड टू रिमेन कन्फिन टू द प्रोडक्ट लाइन और पर्टिकुलर जियोग्राफी लोकेशन। जिस लोकेशन में आपको बेचने के लिए बोला, जिस प्रोडक्ट लाइन को आपको बेचने के लिए बोला, उसमें ही आपको करना होगा। तो आप रेस्ट्रिक्शन में ही आपको काम करना होगा। आप अपना आइडियाज जो है वो अप्लाइड नहीं कर सकते हो, आप उसी में काम करोगे। जो फॉर्मेट एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के अंदर आप काम करोगे। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जो है वो ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, गुडविल रिमेन स्टिल विद द फ्रेंचाइज। दो आपने बहुत सारा बिजनेस बढ़ाया, ठीक है, आपने बिजनेस बढ़ाया, फिर भी आपकी गुडविल जो है, आपने गुडविल बढ़ाई, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपका बिजनेस एक्सपांड हुआ तो आपकी गुडविल बढ़ी, पर गुडविल आप पे नहीं होगी, फ्रेंचाइजी पे नहीं होगी, पर गुडविल फ्रेंचाइजी के साथ ही रहेगी। इट विल रिमेन स्टिल विद द फ्रेंचाइजर दो यू हैव इंक्रीज द गुडविल। फेलियर ऑफ द फ्रेंचाइजर विल लीड टू फेलियर ऑफ योर बिजनेस। आपने फ्रेंचाइजी ली है तो फ्रेंचाइजर का फेलियर हुआ, मतलब आपका खुद का बिजनेस जो फ्रेंचाइजी थ्रू आपने स्टार्ट किया वो भी फेलियर रहेगा। फियर ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ द फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे सपोज वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया का तो आपको यहाँ पे मेनी फ्रेंचाइजीज बिकम वल्नरेबल टू दिस ऑप्शन बिकॉज दे ऑपरेट अंडर द कंस्टेंट फी ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ द फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट। मतलब क्या, फ्रेंचाइजर ने, ठीक है, क्या बोला मैंने, फ्रेंचाइजर ने अपना एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया तो वो फ्रेंचाइजी को अफेक्ट हो सकता है बिकॉज उसका बिजनेस वहीं पे स्टॉप हो सकता है। दैट विल बी अ डिसएडवांटेजेस ऑफ योर franchising. So this was the topic about the franchisee. Then you learn the general meaning of franchisee, its benefit and its disadvantages. Hope you are clear with this video. Now next video we will learn about the types and agreement of franchisee. Thank you all students for listening.